today our another topic is modern physics. So in the modern physics, the main important thing is cathode ray. So we have to understand that is what is cathode ray, right? The cathode rays consist of electrons which are negatively charged particles. हम लोगों को एक चीज तो मालूम है, एक अगर एटम होगा उसमें तीनों चीज रहता है. क्या क्या? नंबर 1 is proton, number 2 is electron and number 3 is neutron. So proton is the positively charged particles, electron is the negatively charged particles, as well as neutron is the neutral particles. So the cathode ray consists of electrons that indicates which are negatively charged particles. The cathode rays travel in a straight line. Actually, we know that क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है. सो कैथोड रे भी इलेक्ट्रॉन के सिवा और इलेक्ट्रिसिटी की तरह स्ट्रेट लाइन में जाता है. On striking metals of high atomic weights, the cathode ray produce X-rays. मतलब कि जो मेटल है जिसका एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, अगर उसमें कोई कैथोड रे को हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? वहां से एक्स-रे प्रोड्यूस होगा. On striking glass surface or screens coated with zinc sulfide, cathode rays produce fluorescence. Fluorescence क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा. On striking any material, cathode rays produces heat. मतलब कि अगर हाई एटॉमिक वेट का कोई मेटल में कैथोड रे को हम भेजेंगे तो एक्स-रे प्रोड्यूस होगा. सिमिलरली एनी मटेरियल को जिसके ऊपर हम लोग कैथोड रे को भेजेंगे तो एक हीट जनरेट होगा. क्यों? हम लोगों को तो ये मालूम है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर कैथोड रे में भी इलेक्ट्रॉन है which is the negatively charged particles, the heat तो जनरेट होना ही है. The cathode rays deflect towards the negatively charged particles and passing through a magnetic field. हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं? Opposite poles attract each other, same poles repel each other. इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो नेगेटिव साइड में तो वो नहीं जाएगा, उसमें से रिपेल ही होगा. इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. मतलब कि जहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई चीज हो, ऐसा कोई प्रॉपर्टी हो, कोई मटेरियल है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई पार्टिकल्स है, तो फिर कैथोड रे उसकी तरफ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. द कैथोड रेज आयोनाइज गैसेस. द कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटल फॉइल्स. थिन अगर कोई शीट हो मेटल फॉइल्स का तो कैथोड रे उनमें से घुस पाएगा. The charge to mass ratio of the cathode rays was found to be same for that and metals or electrons. तो यहाँ पे पिक्चर था. This is the cathode ray tube experiment. This is the electron beam and this is the anode. This is the focusing oil. This is the anode. And यहाँ से cathode ray को हम लोग फ्लोरोसेंट स्ट्रीम में मिल जाएगा हम लोगों को cathode ray. नेक्स्ट वन इज एनोड रे. इसका एनोड नेम इज कैनाल रे बिकॉज़ हम लोग पिछला पीक में देखे थे, पिछला इमेज में पिछला पिक्चर में देखे थे कि एक कोई कैनाल का टाइप का चीज है जिसके ऊपर एनोड लिखा हुआ था. तो वहां से अगर कोई रे प्रोड्यूस होगा उसका हम क्या कहेंगे? एनोड रे एज वेल एज कैनाल रे. द एनोड रे ट्रैवल इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज. मतलब एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से है, कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स में था. That should be the electrons. So उसका opposite क्या है? उसका opposite है anode ray. That's why वो positively charged particles खुद ही है. They travel in straight lines like cathode ray. The charge to mass ratio of the particles in the anode rays was found to depend upon the nature of gas in the discharging tube. Gas जैसा discharge होगा वैसे ही anode ray pass होगा और उसका charge to mass ratio भी वैसा ही होगा. The anode rays also produces ionization in gases. They are deflected by both electrical and magnetic field. Now our hot topic, which is the very much hot topic in our environment, in our society, is X-ray. X-ray क्या है? It is discovered by Roentgen, the scientist. The name of the scientist is Roentgen, who discovered the X-ray. देखो यहाँ पे है, it is electromagnetic in nature. They have a shorter wavelength of the electromagnetic spectrum. जब हम लोग एक्सरे करने के लिए कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं वहाँ पे हम लोगों का जो मशीन है एक्सरे का, वहाँ से एक्सरे होता है. अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा होता तो पर्टिकुलर उस रूम में अगर वो कोई एक्सरे को अगर कोई बाहर लेकर आएंगे तो जितना भी लोग होंगे सबके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ जाएगा. तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा. तो दैट्स व्हाई क्या है? दैट्स व्हाई यहाँ पे एक शॉर्टर वेवलेंथ है एक्सरे का.
They require higher voltage to produce X-rays. They are used to capture the human skeleton defects. मैं picture में दिखा रहा हूँ कैसे होता है. They travel in a straight line and do not carry an electric charge with them, and they are capable of traveling in a vector. This is the anode ray. So this is the canal ray. This is a light canal. यहाँ से जो ray निकलता है इसलिए हम इसको कहते हैं canal rays. As well as this is the anode जहाँ से positively charged particles निकालता है, and इसलिए हम इसको कहेंगे both anode ray और canal ray. This is the picture. This is the picture of human skeleton. This is a actually normal जो आदमी है, normal जो animal है, normal animal के ऐसे 5 उंगलियां हैं. उसमें से अगर एक से हम पास करवाएंगे तो उसका skeleton ऐसे हम लोगों को दिखा जाएगा. तो ऐसा जो skeleton है ये तो normal है. अगर इसमें कोई ट्यूमर अगर कुछ भी होता तो वो यहाँ पे शो हो जाता है. इसीलिए हम एक्सरे को यूज करते हैं. Now the photoelectric effect. What is this? यहाँ पे जो लिख रहा है the phenomenon of metals releasing electrons when they are exposed to light of the appropriate frequency is called the photoelectric effect, and the electrons emitted during the process are called photoelectrons. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? phenomenon of metals releasing electron when they are exposed to the light of appropriate frequency. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई मेटल के ऊपर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएगा, है ना. अगर वही बात है तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का मतलब ही तो फोटो है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट एक मेटल के से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड द इफेक्ट इज नोन एज photoelectric effect. It is based on laws of conservation of energy. The device where the light energy is transformed to electrical energy is called photoelectric cell. तो मैंने पहले क्या कहा था? Appropriate frequency का लाइट चाहिए. जो लाइट अगर कोई मेटल के ऊपर आएगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो लाइट आने से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन. जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जिस डिवाइस में ऐसा कुछ होगा, ऐसा इंसिडेंट होगा और होता जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल. एज वेल एज लाइट मेटल के ऊपर आया, लाइट मेटल के ऊपर आने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैंने पहले ही कह चुके थे कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इंडिकेट्स इलेक्ट्रिसिटी. लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ना. दैट्स व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक सेल का एक मेन काम है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और ट्रांसफॉर्म करना. Now the properties of photons is a very knowable things, many knowable element or whatever it is. Photon came from sun, right? The photon does not have any mass or charge and they are not reflected in magnetic and electric field. This is a specialized property of photon which is not reflected by the electric field and magnetic field both. The photon moves at the speed of light in empty spaces. During the interaction of matter with radiation, the radiation behaves as it is made up of small particles of photons. Radiation में क्या होता है? Radiation में small particles थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है. वो small particles को हम क्या कहेंगे? Photon कहेंगे. The photons are virtual particles क्योंकि जो sunlight से जो photons निकलेगा और जो निकलता है वो तो हम लोग खुद नहीं महसूस कर पाते हैं, खुद लोग देख नहीं पाते हैं, है ना. बट वो निकल नहीं रहा है ऐसा नहीं, वो निकल रहा है. तो the photons are virtual particles. हम लोगों को समझना है कि उनमें से photons निकल रहा है. The photon energy is directly proportional to its frequency and inversely proportional to its wavelength. इसका मतलब क्या है? photon का जो energy है वो directly proportional with the frequency. मतलब frequency और sunlight जितना ज्यादा होगा वहां से photon उतना ही ज्यादा निकलेगा. As well as inversely proportional to its wavelength. मतलब sunlight मगर sun अगर सर के ऊपर ऐसा हो वहां से ज्यादा फोटोन नहीं चलेगा. अगर वो ऐसे हो जाए उसका वेवलेंथ ज्यादा हो जाए तो फोटोन उतना गहराई से नहीं निकल पाता है. दैट्स व्हाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. Its application, the automatic doors and automatic switches of street lights, the applications of the photoelectric effect, and this is the picture of photoelectric effect. You can see
इंसिडेंट लाइट मतलब जो फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, जो मेटल सरफेस के ऊपर ये लाइट आ रहा है, और यहाँ से सरफेस से इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लाइट आने के बाद सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लाइट आने के बाद निकल रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द मेटल सरफेस एंड दिस इज द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन. Now the fluorescence and phosphorescence. It's a very important and very interesting topic. The fluorescence is the phenomenon of emission of light of low frequency. Point to be noted that low frequency from a substance when some light from a source is incident on it. अगर किसी चीज के ऊपर लाइट आया जाएगा और वहां से लो फ्रीक्वेंसी से निकलेगा लाइट, जिसको हम कहेंगे फ्लोरोसेंस. As well as the next one is the phosphorescence, where the substance can emit light for some time even after the source is removed. मतलब लाइट जो इंसिडेंट होने वाला था, इंसिडेंट होने के बाद लाइट अगर हम रिमूव कर दिए हो, फिर भी वहां से थोड़ा थोड़ा करके लाइट एमिट करेगा. Zinc sulfide exhibit the phenomenon of phosphorescence. This is the example, and the next one is the semiconductor, which is another important topic. Semiconductor का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को कंडक्ट कर पाएगा, मतलब कि थोड़ा बहुत कंडक्ट कर पाएगा. वो खुद कंडक्टर भी नहीं है, खुद इंसुलेटर भी नहीं है. The substance which can pass or conduct heat and electricity with the presence of high temperature. मतलब हाई टेम्परेचर में अगर कोई चीज कंडक्ट कर पाता है तो उसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर. अगर हाई टेम्परेचर में नहीं कंडक्ट कर पाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर. अगर कोई भी टेम्परेचर में नहीं कर पाएगा वो भी इंसुलेटर है. अगर एनी टेम्परेचर में प्रोड्यूस कर पाएगा हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, देन हम उसको कहेंगे सिर्फ कंडक्टर. To increase the conductivity of semiconductor, chemical process is performed called doping. डोपिंग का मतलब क्या है? डोपिंग का मतलब है कुछ ट्राइवैलेंट, कुछ पेंटावैलेंट मॉलिक्यूल्स है, कुछ एटम्स है, जिसके सिवा हम लोग डोप कर पाते हैं एक सेमीकंडक्टर को, उसका प्रोडक्शन अच्छा होने के लिए. The pure semiconductors that without doping, मतलब कोई ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट मॉलिक्यूल्स हम नहीं यूज किए हो, कहते हैं इंट्रिंसिक. एंड जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें हम ऑलरेडी डोप कर चुके हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक कंडक्टर. मैंने क्या कहा? केमिकल प्रोसेस का नाम कहा. केमिकल प्रोसेस का नाम क्या है? केमिकल प्रोसेस का नाम है डोपिंग. एज वेल एज मैंने क्या कहा? विदाउट डोपिंग मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, हाई टेम्परेचर में जो लाइट एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएगा, उसको कहा इंट्रिंसिक. एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब विद डोपिंग के बाद, डोपिंग करने के बाद जो होगा उसका हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक कंडक्टर. At 0 Kelvin, that is the absolute temperature, semiconductor behaves like insulator. This is the actual picture of fluorescence and phosphorescence. Light incident हुआ है, वहां से light emit कर रहा है, और यहाँ पे light incident होने के बाद light source को हमने remove कर दिया, फिर भी यहाँ से light थोड़ा थोड़ा करके emit हो रहा था. This is the phosphorescence as well as this is the fluorescence. यहाँ पे मैंने जो बात कर रहा था about doping, तो doping का जो बात कर रहा था वो है इसका पिक्चर. यहाँ पे कोई डोनर नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्टर है सिर्फ. यहाँ पे कोई एक्सेप्टर नहीं है, सिर्फ डोनर है. दिस इज द न्यूट्रल पी रीजन, यहाँ पे न्यूट्रल इन रीजन. इसका मालूम क्या है? हम लोग आ रहे हैं. Here the types of semiconductor. Actually there are two types of semiconductor. Actually the first type is N type and second type is P type. देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि in an N type semiconductor the pentavalent impurity from 5 groups is added to the pure semiconductor. Pentavalent मतलब जिसका वैलेंसी है 5. Similarly in case of p-type semiconductor there are trivalent impurities, मतलब जो एटम और जो मॉलिक्यूल का वैलेंसी होगा सिर्फ 3. The example of pentavalent impurities like phosphorus, antimony, bismuth, arsenide. Trivalent का indium, gallium, aluminium. The pentavalent impurities provide extra electrons. Provide कर रहा है extra electrons, मतलब N-type semiconductor is a type of donor. Similarly, the trivalent impurities added provide extra holes known as acceptor. मतलब the P-type is the acceptor. And the electrons are the majority charge carriers in N-type semiconductors where they donate electrons. मतलब उस लोगों के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पेंटावैलेंट है, 5 है, इसीलिए डोनेट कर रहा है, मतलब कि वो डोनर है.
और इलेक्ट्रॉन उसका मेन चीज है। इन केस ऑफ पी टाइप वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, डोप करने के बाद उन लोग इलेक्ट्रॉन को फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों के पास होल्स ज्यादा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। That is the majority of charge carriers in n-type semiconductor are called holes. This is the n-type and this is the p-type diagram. This is the pentavalent molecule, that is antimony, and this is the trivalent molecule, actually the boron, which are the another example of pentavalent and trivalent atom or molecule. Now the classification of sources of energy. Actually there are two type of sources of energy, that is renewable sources and the non-renewable sources. Renewable sources का मतलब क्या है? Renewable sources का मतलब है जो renew हो पाएगा, like water, like sunlight, जो renew हो पाएगा, like wind, तो वो टाइप का एनर्जी को हम लोग कहेंगे renewable energy। और जो renew नहीं हो पाएगा, like coal, like petroleum, like natural gas, उन लोगों को हम कहेंगे non-renewable sources of energy. So these are the renewable sources like biomass energy, hydropower energy, solar energy, wind energy, geothermal energy. Or these are the non-renewable energy, that is fossil fuel, natural gas, coal, petroleum, these are. तो renewable energy से हम लोगों को ध्यान से यूज करना चाहिए, renewable energy को हम लोगों से ध्यान से यूज करना चाहिए, ऐसे ही कि non-renewable कभी खत्म हो सकता है। अगर non-renewable खत्म हो जाएगा तो renewable से हम लोगों को अगला जो दिन आ रहा है हम लोगों को उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नॉन रिन्यूएबल को भी हम लोगों को अच्छे से यूज करना है, कभी यूजलेस कुछ काम के लिए उनको नहीं यूज करना है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग टीवी चला के घर से निकाल देते हैं, घर से निकाल जाते हैं, हम लोग फैन लाइट नहीं बंद करके घर से निकाल जाते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हम लोगों को ऐसे यूजलेस काम नहीं करना है क्योंकि वो रिन्यू नहीं हो पाएगा कभी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोगों को मेंटेन करना है, हैंडल करना है, अगला दिन में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हम लोगों को चलना है ना। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट।